Okay, we have started with the recording now. Yes. Now pay attention how to solve this. Okay, you have to go systematically. अगर कहीं पे भी गलती होती है, the final answer you won't get. So here actually we have to form the tables now. Okay, we have to form the tables. So table number 1 कैसे form किया जाता है? So table number 1 is formed. So depending upon the given the min terms, you will land up with how many tables you have to form. Okay, वो आपको समझ में आएगा when you have a practice on this. Okay, so सबसे पहले वाला जो टेबल होता है वो क्या है? Okay, सबसे पहले वाला टेबल. In table 1, we have to have two columns. One column is about the min terms. So this is table 1. पहले कॉलम में होता है min terms और दूसरे कॉलम में होता है its corresponding binary. Its corresponding binary. Okay. So min terms already given in the problem. The binary अगर हम देखेंगे तो how many variables I have? I have 4 variables. So these 4 variables are A, B, C and D. These are the 4 variables. Okay. And the given problem, there are min terms. How many min terms you have? You have to write down here. So min terms are 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11 and 15. So these are the min terms. Now corresponding to the min terms, you have to write down their corresponding binaries. So 0 will be given as 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Then for 8 it is 1, 0, 0, 0. For 9 it is 1, 0, 0, 1. For 11 it is 1, 0, 1, 1. And for 15 it is 1, 1, 1, 1. So your table 1 is completed. Completed. See, your min term should be written in the ascending order. छोटे से बड़ा 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15. यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है. असेंडिंग ऑर्डर में ही आपका min term जाना चाहिए. Okay, so you have completed the first one. That is the first table. Now we will go to the second table. Okay, कहीं भी कुछ गलती है समझ में नहीं आ रहा तो please stop me there. Okay, we will go to the next page now. This is table 1 completed. Go to the table 2. Go to the table number 2 now. Now table 2 में क्या है? Now table 2 is what? Table 2 will have now 3 columns. Table 2 will have now 3 columns. Table 2 में 3 columns कौन से? The see here now. The first column is group. The second column is min terms. And the third column is variables. And these variables, which are they? They are A, B, C and D. Actually, concentration second table से start होता है. Okay? First table में तो min term जो दिया उसके corresponding हम उसके variables के binary form में लिखते हैं. Second time में actually we have to be very attentive. Now we have to form the groups. Okay, so the group we have the min terms and the variables. Okay, so what are the groups, what are the corresponding min terms and what are the corresponding variables, we will see. Now the first group is group 0. So group 0 का मतलब होता है you have to make a group, you have to find the group which is having 0 number of ones. So for completing table number 2, we have to see table number 1. To complete table number 3, we have to see table number 2. To complete table number 4, we have to see table number 3. It will go on in this manner. So for table number 2 completion, we have to refer table number 1. In this, you have to find the binaries which are having 0 number of ones. So tell me which is the one which is having 0 number of ones. Or tell me the min terms which is having 0 number of ones. 0. Yes. 0. Yes, it is 0. It is 0. Okay. So here I am having this 0 which is having 0 number of ones. Okay. So we will write down that group. We will write down that min term group. So it is 0 and it is 0, 0, 0, 0. और कुछ नहीं दिख रहा है. So 0 group खत्म हो गया. The group number 1. Group number 1 is the group which will have
1 ones which will have 1 ones. Okay, एक ही 1 उसमें होना चाहिए. Go to the previous group. Tell me the min terms which is having only 1 1. 1 and 8. 1 and 8. हाँ, और एक बात, जो जो हम ग्रुप्स बना रहे हैं उसको टिक मार्क करते भी जाना है. ओके ना. जैसे मैंने ये ग्रुप 0 में लिया, इसको टिक मार्क किया, तो आप लेफ्ट में टिक मार्क करो, राइट में टिक मार्क करो. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने वो ऑलरेडी ग्रुप ले चुका हूँ. ओके, और सिंप्लीफिकेशन तुरंत फटाफट हो जाएगा. तो मैंने 1 और 8. इज देयर एनी अदर ग्रुप अदर देन 1 and 8? Is there any other group? No. Okay. So एक ग्रुप में आपके पास आएगा 1 and 8. So you will write down here 1. So for 1 I can write down 0 0 0 1, and the other one is 8. Okay. So for this I will write it 1 0 0 0. Okay. और कोई ग्रुप नहीं है. Go to the previous now. No, sorry. यहाँ पे लिखो 1. ग्रुप 1 का हो गया. अभी 2 का. So group 2 is the groups which are having 2 ones, which are having 2 ones. Okay, so go to the previous. इसमें से find up करो जिसमें 2 ones है. So it is 3 और and 9. 9. Okay, 3 and 9. So go to the table number 2. So 2 में आएगा आपका 3 और 9. मैं पहले 9 नहीं लिखूंगा, मैं पहले 3 लिखूंगा. हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के ही हिसाब से मिन टर्म्स लिखना है. So 3 I am writing down here. So it is 0 0 1 1, and for 9 it is 1 0 0 1. Okay, तो ये हो गया 2 का. अभी थर्ड ग्रुप में जिसमें 3 नंबर ऑफ 1 है, 3 नंबर ऑफ 1 है. So find out them. It is 7, it is 11. Am I right? 7 and 11. सो यहाँ पे एक 7, हाँ 7 लिखूंगा. तो 7 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 0 1 1 1, और 11 के लिखना पड़ेगा 8 9 10 11. सो 1 0 1 1 1 0 1 1. ओके, प्रीवियस पेज, सॉरी नेक्स्ट पेज में अभी फोर्थ ग्रुप आएगा जिसमें 4 ones होंगे, 4 ones होंगे. तो इसमें मेरा एक ही है, वो है मेरा 15. If you want to see, you can see here. टिक मार, इसलिए मैं टिक मार करके रखता हूँ कि आपका बाकी जो ग्रुप्स हो गए उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा. सो 15 इज देयर. सो 15 के लिए आप डायरेक्टली लिखोगे 1 1 1 1. सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर टेबल नंबर 2. शैल वी प्रोसीड टू टेबल नंबर 3? यहाँ पे किसी को डाउट है? शैल वी प्रोसीड टू टेबल नंबर 3? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गो टू टेबल नंबर 3 नाउ. सो टेबल नंबर 3. सो टेबल नंबर 3. अब टेबल नंबर 3 में क्या है? टेबल नंबर 3 में वही है. क्या है? वही ग्रुप्स आएगा. देन यू विल हैव मिन टर्म, एंड यू विल हैव द लास्ट वेरिएबल्स. वेरिएबल्स भी आपके ए बी और सी और डी है. ओके, सो ये है ग्रुप्स, मिन टर्म्स एंड वेरिएबल्स. अब ये टू कंप्लीट योर टेबल नंबर 3, मैंने आपको बताया था यू हैव टू रेफर टेबल नंबर 2. अब इसमें क्या होने वाला है? सी नाउ. ओके, नाउ हियर यू हैव टू बी मोर अटेंटिव. नाउ गो टू द प्रीवियस टेबल. अब प्रीवियस टेबल में आप जब जाओगे, नाउ हियर वी हैव टू सी, वी हैव टू कंपेयर ग्रुप 0 विद ग्रुप 1. वी हैव टू कंपेयर ग्रुप 1 विद ग्रुप 2. वी हैव टू कंपेयर ग्रुप 2 विद ग्रुप 3. वी हैव टू कंपेयर ग्रुप 3 विद ग्रुप 4, and this will continue, and this will continue. Okay, so first we have to compare group 0 and 1. अब एक्चुअली कंपेयर करना है तो क्या करना है? ओके, जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 0 और 1 को, एक्चुअली आई एम कंपेयरिंग 0 and 1. आई एम कंपेयरिंग 0 and 1. ओके, आई एम कंपेयरिंग 0 and 1. सो व्हेन यू कंपेयर 0 and 1, एक्चुअली हमको क्या देखना है? वी हैव टू सी द बिट विच इज चेंज्ड ओनली बाय 1 पोजीशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 0 0. I'm comparing 0 and 1 now. 0 0 is there, 0 0 is there, this 0 0 is there, but there is a change of this LSB bit 0 and 1. So 0 and 1, यहाँ पे 0, there is only one bit change. So whenever there is one bit change, at that point, at that position, you have to keep dash. वो पॉइंट पे आपको डैश रखना है. वो कैसे करना है? सी करना. ये अपना टेबल नंबर 3 है. मेरा ग्रुप 0 में बोलूंगा, वही आपका 0 1 2 3 रहेगा.
लेकिन ग्रुप 0 में यू आर कंपेयरिंग 0 एंड 1, सो यू विल राइट 0 मिन टर्म 0 एंड 1 यू आर कंपेयरिंग। तो जब मैं 0 और 1 को कंपेयर करता हूं तो यू हैव 0 0 0। एमएसबी में आपका 0 है ऊपर, नीचे 1 है, तो वो लिखा जाएगा डैश, वो लिखा जाएगा डैश, वो लिखा जाएगा डैश। ओके, अगेन गो टू द प्रीवियस टेबल। मैंने 0 और 1 को कंपेयर किया, नाउ यू हैव टू कंपेयर 0 एंड 8। अब मैं आपको सिंप्लीफाई सॉरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। यू कैन जस्ट टिक मार्क, यू कैन जस्ट टिक मार्क। ओके, तो ये 0 है, आपका 1 है, तो मैंने ये और ये कंपेयर किया। नाउ आई विल बी कंपेयरिंग दिस 0 विथ 8। व्हेन यू कंपेयर 0 विथ 8, नाउ सी हियर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 है तो वहाँ पे डैश आएगा। ये 0 है, 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 0 है। ओके, सो ओनली देयर इज अ change in one bit, that is your MSB. It can be changed at any bit position, there is no problem, but एक ही change होना चाहिए, दो changes नहीं चाहिए। Okay, so here I can say dash 0 0 0. So in the next one I can write down 0 1 मैंने कंपेयर किया था, अभी मैंने कंपेयर किया 0 और 8, तो it will be dash 0 0 0. Do you agree with this? Do you agree with this? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Yes or no? Yes, sir. हाँ, Yes, ये हो sir. गया मेरा 0 1, हाँ ये हो गया मेरा 0 1 और 0 8। तो फॉर 0 ग्रुप और 1 ग्रुप कंपेयर हो गया। अभी मुझे ग्रुप 1 में 1 और 2 को कंपेयर करना है, 1 और 2 को कंपेयर करना है। ओके, तो 0 का ग्रुप का काम हो गया। अभी मेरा ग्रुप 2 1 है जिसमें मुझे कंपेयर करना है 1 और 2 को। वो कंपेयर नाउ 1 विथ 3, 1 और 3 को कंपेयर करो। अब 1 और 3 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 0 है, 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 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डैश आएगा, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये बराबर है। तो ये मैं कैसे लिखूंगा? 0 0 डैश 1, 0 0 डैश 1। तो नेक्स्ट इसमें आपको लिखना है, मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ 1 और 3 को, और कंपेयर होने के बाद मुझे मिला है 0 0 डैश 1, 0 0 डैश 1। ओके, सेम थिंग यू कंपेयर नाउ 1 विथ 9, कंपेयर 1 विथ 9, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। तो ये 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 है, 1 है। यस, तो कंपैरिजन हो रहा है। देन आई शुड राइट डाउन हियर 1 और 3 हो गया। अभी 1 और कॉमा 9, 1 कॉमा 9 जब लिखता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा डैश 0 0 1, डैश 0 0 1, डैश 0 0 1। देखो कहीं गलती आ रहा तो जस्ट स्टॉप पे देयर। ओके, तो 1 कॉमा 9 हो गया। अभी मुझे फिर से कंपेयर क्या करना है? देखो 1 और 3 को कंपेयर किया, 1 और 9 को कंपेयर किया। अभी मेरा 8 और 3 को कंपेयर करना बाकी है, 8 और 3 को। तो 8 और 3 को जब कंपेयर करता हूं मैं 8 और 3 को, सो हियर दिस इज योर 8 एंड 3। सो 1 है यहाँ पे 0, तो डैश आ गया। यहाँ पे 0 0 है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 है, ये कंपेरिजन नहीं हो रहा। सो आई कैनॉट कंपेयर, सो कंपेरिजन नहीं हो रहा है, सो दैट थिंग आई विल अवॉइड। देन कंपेयर 8 विथ 9, कंपेयर 8 विथ 9। तो 8 का आपका 1 है, यहाँ पे भी आपका 1 है, यहाँ पे आपका 0 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 है, यहाँ पे आपका 1 है। तो यस, 1 बिट चेंज हो रहा है। तो आई कैन कंपेयर 8 एंड 9, आई कैन कंपेयर 8 एंड 9। सो हियर यू कैन राइट डाउन 8 कॉमा 9, 8 कॉमा 9। सो 8 कॉमा 9 जब करूंगा मैं तो यू विल राइट डाउन हियर 1 0 0 डैश 1 0 0 डैश। ओके, तो आपका 1 और 2 का भी हो गया। अभी 2 और 3 का बाकी है। ओके, 2 और 3 का बाकी है। तो नेक्स्ट आई विल गो, अभी यहाँ पे आई डोंट हैव प्लेस, आई विल टेक द नेक्स्ट पेज। ओके, तो हियर यू विल हैव अ ग्रुप, देन दिस इज min terms and variables A B C and D। ओके, ग्रुप्स min terms variables। तो मैंने 0 का हो गया, 1 का हो गया, अभी 2। सो हियर आई विल राइट डाउन 2 नाउ। ओके, अब 2 में क्या आएगा? 2 में क्या आएगा? सो 2 एंड 3 आई एम कंपेयरिंग। सो फर्स्ट कंपेयर, मैं इसको इरेज करता हूं। अब 2 और 3 को जब मैं कर रहा हूं, सो यू विल कंपेयर 3 विथ 7। तो 3 और 7 को जब कंपेयर करते हो
So 0 and your 7 is 7. हाँ ये वाला, हाँ तो 0 0 इज देयर, 0 ओके, 0 और 1 है, एक पोजीशन चेंज है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1. यस, आई कैन कंपेयर 3 and 7. I can compare 3 and 7. So I will write down here second group में 3,7. 3,7. So it will give you 0 dash 1 1. 0 dash 1 1. Okay. अभी मैं क्या करता हूँ, I will just speed up मैं, क्योंकि ऑलरेडी हैव अ सॉल्यूशन, तो मैं डायरेक्टली आपको लिख के देता हूँ. 3 और 7 हो गया. Then you can have 3 and 11 also. ये आपको बाद में आराम से करना है. You can compare 3 and 11 also. So when you compare 3 and 11, you will get what? You will get dash 0 1 1. आपका 9 और 11 भी होता है सेकेंड ग्रुप में. आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द आंसर्स नाउ, यू कैन क्रॉस चेक आफ्टरवर्ड्स. 1 0 dash 1. ओके, ये हो गया सेकेंड ग्रुप का. अभी जो लास्ट वाला रहेगा वो थर्ड वाला रहेगा. थर्ड वाले ग्रुप में क्या है, सी हियर, थर्ड वाले बोले तो 3 and 4 को आप कंपेयर करोगे. अभी 3 और 4 को. ओके, सो 3 और 4 को जब कंपेयर करोगे तो थर्ड ग्रुप में आपका जाएगा 7 और 15 के साथ. तो 7 15 के साथ जाएंगे तो डैश 1 1 1, और 11 15 के साथ जब जाएगा तो इट विल बी 1 डैश 1 1. ओके, तो ये टेबल नंबर 3 खत्म हो गया. सो वी हैव कंप्लीटेड विद टेबल नंबर 3. ओके, नाउ द सेम थिंग विल कंटिन्यू व्हेन यू फॉर टेबल नंबर 4 ऑल्सो. टेबल नंबर 4 में क्या होगा, 0 और 1 का भी कंपैरिजन होगा, बाद में 1 और 2 का कंपैरिजन होगा, और बाद में लास्ट में 2 और 3 का कंपैरिजन होगा. ये कब तक करना है, जब तक हमको ये आपके जो वन पोजीशन चेंज जब तक नहीं मिलते, सॉरी जब तक हमको मिलते तब तक हमको ये करना है. ओके, एक पोजीशन में हम वी विल सी देयर आर 2 पोजीशन चेंजेस. तो 2 पोजीशन चेंजेस जहाँ पे हो रहे तो वहां पे हमको रुकना है. ओके, सो 2 और 3. नाउ वी आर गोइंग टू द फोर्थ टेबल. सो टेबल 4 में वही है, आपका ग्रुप है, मीन टर्म्स है, और आपका है वेरिएबल्स ABCD. ओके, अभी इसमें देखो ग्रुप कर रहा हूं बाय रेफरिंग टेबल नंबर 3. तो पहला ग्रुप है 0. अभी उसमें ग्रुप होगा 0 1 8 9. 0 1 प्रीवियसली, हाँ ग्रुप 0 और 1 को भी मैं कर रहा हूं ना, तो इसमें कंपेयर होगा 0 1, ये 0 1 0 1 0 1 8 9 के साथ. इसका मतलब 0 1 1 3 के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है. इसका मतलब 0 1 1 8 के 1 9 के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है, लेकिन 0 1 8 9 के साथ कंपेयर हो रहा है. और वो होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 0 1 8 9 देखो, 0 1 8 9. हाँ ये देखो यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे डैश आ जाएगा. ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये डैश ये डैश. यस, सो आई कैन कंपेयर. तो कंपेयर होने के बाद देखो क्या आ रहा है, 0 ग्रुप में आएगा. सी हाउ डू यू राइट डाउन 0 1 8 9, और ये कंपेयर होने के बाद आपका आंसर रहता है डैश 0 0 डैश डैश 0 0 डैश. वैसे ही अगर मैं और कंपैरिजन करूंगा तो 0 8 1 सॉरी 0 8 1 9. ओके, तो ये आएगा 0 डैश 0 0 0 0 डैश. ओके, बस इतने कंपैरिजन होता है. बाद में आई विल गो विद ग्रुप नंबर 1. ग्रुप नंबर 1 में अभी 1 और 2 को, ग्रुप 1 और 2 को कंपेयर करना है. तो 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करूंगा, सो हियर ये, हाँ ये वाला और ये वाला, इसको जब कंपेयर करूंगा, देन आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द आंसर. इट इज 1 3 9 1 11. तो इसका आंसर आता है डैश 0 डैश 1. और फिर से उसी में ग्रुप में 1 9 3 11, इसमें जब कंपेयर करते हैं तो आता है डैश 0 डैश 1. ओके, अभी हम लास्ट वाला ग्रुप रह गया. उसमें भी ये टेबल कंटिन्यू रहेगा. अभी वो ग्रुप नंबर 2 रहेगा. सो ग्रुप नंबर 2 में हमको क्या करना है, सो आई विल गो टू द टेबल नंबर 3. हाँ ये 0 1 का हो गया.
1 2 का हो गया. अब 2 और 3 का जब कंपैरिजन होगा तो आई एम हैविंग ग्रुप नंबर 2. So in this group number 2, I am writing down the direct answer. So it is 3, 7, 11, 15. तो इसका कंपैरिजन होने के बाद आपको आता है डैश डैश 1 1. और लास्ट में एक कंपैरिजन होता है 3 11, 7, 15. इसका आंसर, इसका जो कंपैरिजन आता है वो आता है डैश डैश 1 1, डैश डैश 1 1. इसके टेबल 4 से मैं टेबल 5 तक नहीं जाता हूँ. अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो 2 चेंजेस, देयर विल बी ऑलवेज 2 चेंजेस, देयर वोंट बी सिंगल चेंज. सो दिस इज द लास्ट टेबल जहाँ पे मुझे रुकना है, सो दिस इज द लास्ट टेबल वी हैव टू स्टॉप. एंड फाइनल मुझे आंसर लिखना है. आई वांट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम. तो वो होने के, ये टेबल होने के बाद अभी लास्ट एक टेबल रहता है जिसमें मुझे क्या लिखना है. सी हियर नाउ, in this table, this is called as a prime implicant table. This is called as a prime implicant table. वैसे देखा जाए तो और 2 टेबल्स बाकी है. जब अगर मैं प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बताऊं तो इसके बाद और एक टेबल बाकी है. अदरवाइज नो, दिस इज द लास्ट वन, बिकॉज डायरेक्टली हम इसी टेबल में हमको वी विल गेट द आंसर. तो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में क्या लिखना है, सी हियर ऑल ऑफ यू. सो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में यू हैव टू मेक प्राइम इम्प्लीकेंट का एक कॉलम रहेगा, then the corresponding decimal, or you can say the min terms, but लेकिन हम decimal ले लेते हैं वहाँ पे. then here you will have min terms. अभी आपके जो प्रॉब्लम में दिया था उसमें min terms जो दिए थे वही आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, वो कैसे लिखना है, सी हियर. 0 था, 1 था, 3 था, 7 था, then 8 was there, 9 was there, 11 was there, and 15 was there. Okay, now here in prime implicant, what thing you have to write down now? Okay, so for this table also you have to refer the previous table. अब previous table आप refer करोगे, table number 4. Okay, in group 0, see the ABCD variable. Okay, corresponding to A you have dash, corresponding to C you have dash, but corresponding to D you have dash, but corresponding to B and C you have B bar, C bar. Do you agree with this? Corresponding to BC you have B bar and C bar. Yes or no? Are you there? Yes, sir. हाँ, तो मैंने क्या बोला, corresponding to BC, because B और C अगर देखते हैं तो दोनों जगह पे 0 0 है. So can I say it is nothing but B bar, C bar? Yes, sir. हाँ. So in this prime implicant you will be writing down prime. देखो मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ. Here you will be writing down prime implicant B bar, C bar. Here you will be writing down B bar, C bar. Okay, B bar, C bar. Okay, similarly go to the previous table. Now in group 1 you will see again A is dash, C is also dash, but corresponding to B and D you have B bar and D. So that is the prime implicant. So here you have B bar D. Okay, similarly the last group will have this particular after comparison where your A and B are dash, but your C and D corresponds to CD. Your CD corresponds to CD. So here you have CD. Okay, so for B bar, C bar, what are the decimal values we have taken? So if you see here carefully, you have to go from ascending order. You have taken the minterms as 0, you have taken the minterms as 1, you have taken the minterms as 8, we have taken the minterms as 9. 0 1 8 9 जो आपको नीचे भी देखने को मिल रहा है, 0 1 8 9. So can I say the minterms what are included are 0 1 8 9? So 0 1 8 9 you will write down here, 0 1 8 9. Okay,
Similarly, for B bar D, the minterms you have taken is 1, 3, 9, 11. So you can just cross check here. You can cross check here. It is 1, 3, 9, 11. Similarly, for this, it is 3, 7, 11, 15. So this thing I'm going to write down here. ये B bar D bar के लिए हो गया और CD के लिए रहेगा 3, 7, 11, 15. 11, 15. ओके, अब ये मिन टर्म्स यहाँ पे क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. Okay, just give me more 2 minutes. I'm going to wind up this solution. Okay, so here 0 is there, so you have to put cross. For 1 you have to put cross. For 8 you have to put cross. For 9 you have to put cross. For 1, 3, 9, 11 put cross. So here you have 1. For 3 you have cross here. For 9 you have cross here, and for 11 you have cross here. For CD 3, 7, 11, 15. So for 3 you have cross here. For 7 you have cross here. For 11 you have cross here, and for 15 you have cross here. क्रॉस होने के बाद क्या करना है, you have to see vertically where you have single cross, you have to circle. For 0 min term there is single cross, you have to circle. For 1 there are 2 crosses, no circle. For 3 there are 2 crosses, no circle. For 7 there is 1 cross, circle. For 8 there is 1 cross, circle. For 9 there are 2 crosses, no circle. For 11 there are 2 crosses, no circle. For 15 there are 1 cross, so circle. Now we have reached to the final answer. The final answer is what? Okay, now we have got the prime implicant. You have got the prime implicant. That means prime implicant आपके solution में रहने वाले prime implicants. Okay, but that can be nullified further by using the essential prime implicants. That means unique terms. Now we have to identify the unique terms. So how do you identify the unique terms? You have to take the corresponding prime implicant where you will see all the circles. So for these 2 circles, I can take this prime implicant. Now here there is no circle, so I will not take this prime implicant. For the last one, there are 2 circles, I can take this prime implicant. So the final answer comes to be y is equals to b bar c bar plus cd. This is your final answer, b bar c bar plus cd. Now if you have to cross check, I want everyone to do this as a homework. What homework? ये जो मैंने प्रॉब्लम लिया था, ये वाला, I want everyone to solve this by K-map, and you should reach to this answer. Which answer? This answer, b bar c bar plus cd. तो हम के मैप से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आंसर जो मिला बराबर मिला, लेकिन के मैप में याद रखना, आप जो भी वंस लोगे तो सबसे बड़ा ग्रुप से आपको स्टार्ट करना है, ऑक्टेट, क्वाड, पेयर, सिंगल वन. ओके, अगर वो प्रॉपरली आप करोगे, प्रॉपरली सिंप्लीफाई करोगे, तो यू विल रीच टू दिस आंसर. ओके, लेकिन अगर एग्जाम में दिया है टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन और कुछ भी नहीं दिया है कि बाय यूजिंग के मैप और क्वीन मैक्सलिक्सी मेथड, then it is up to you which method you have to use. वैसे देखा जाए तो के मैप से जल्दी आ जाता है, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है. It is time consuming. Okay, it is time consuming. So the one which you follow, but here it requires some more time and more understanding. Okay, so this thing you can able to solve this. Any question you have? Now I have to give you the definition for essential prime implicant. Okay, because ये हमने उसमें नहीं लिया है, essential prime implicant में हमने b bar c bar और cd लिया है. Okay, and this is how you get the b bar c bar and cd, because seeing if you see horizontally, जिस लाइन में क्रॉस सर्कल्स है, we have to include. यहाँ पे सर्कल नहीं है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया. Okay, so these are called as a unique terms. B bar, C bar and CD are called as a unique terms, and as well as they are also called as essential prime implicants. Okay,
So I request everyone to go through this video, try to understand, solve by using the K map and cross check your answer. And if there is any question, we will see in the next lecture. Okay. So I think you can leave. एक मिनट लीव करने के पहले अटेंडेंस हो गया क्या? हाँ सर हो गया। Okay. So मैंने ज़्यादा ले लिया आज. So you can leave and we will meet in the next lecture. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye. थैंक यू। Thank you, sir. सर हाँ, सर जो आज का असाइनमेंट ड्यू है उसका एक दिन आप एक्सटेंड कर सकते हो क्या? अभी वो तो सोच के मैंने दिया था. कब है? कल तक चाहिए? हाँ सर कल तक चलेगा। ठीक है. ग्रुप Thank में डाल you, sir. देना. हाँ, Yes. ग्रुप में डाल दो. ओके. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय. Thank you, sir. बाय.